So the definition of the list is a list is a collection of the values inside square brackets and all values are separated by comma. And list is mutable. Okay, what is a mutable? वो मैं clear करता हूँ. So the next thing, a list can contain the same type of value or different type of values. Okay, so we can use like this, L equal to, so L is a variable. We can use some another name for list and these are the values. Okay, so if you print list, so it will print in this form 20, 30, high, 3.4 in square brackets. Okay, so the memory structure of the list. So memory structure of the list, it means suppose there are 4 values. Okay, so we know for each value there is a box. So for the list, suppose we have 4 values 20, 30, high, 3.4. So how the particular values are stored in memory? So we can say the particular values are stored in memory like there is a box. Okay, so 20, 30, then high, the most last value is 3.4. Okay, so list maintain indexing. So now there are 4 boxes. So the 4 boxes are recognized by their indexes. Okay, so हर एक बॉक्स का एक सीरियल नंबर देके रखा हुआ है. The serial number start with 0. Okay, called index. 0, 1, 2, 3. Okay, ये क्या है इसके indexes? 0, 1, 2, 3. Okay, so list also maintains negative index. Negative index कहाँ से होंगे? From the last, from the end. -1, -2, -3, -4. ओके, सो इंडेक्सिंग का मतलब है कि सपोज यदि मुझे इस 30 को एक्सेस करना है, ओनली 30 प्रिंट करना है, सो वी कैन प्रिंट बाय यूजिंग द इंडेक्स. ओके, ये क्लियर है? 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव इंडेक्स एंड नेगेटिव इंडेक्स. सो 30 कैन बी एक्सेस बाय द 1 और बाय -3, दोनों के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो हाई वी कैन प्रिंट बाय यूजिंग 2, बाय यूजिंग -2. 3.4 वी कैन प्रिंट बाय 3 एंड बाय -1. दोनों कैसे प्रिंट होगा? नाउ लेट्स सी. सपोज I want to print only 30, so we can print L. What the index of 30? क्या माँ? What the index of 30? Sir, 1. 1. Okay, so we can put L square bracket 1. So now we get only 30. So, okay, so only 30 we get. 3.4, the index is 3, so we can get 3.4. So we can use the negative index also. तो सपोज आपसे यदि कोई पूछता है कि प्रिंट द लास्ट एलिमेंट, ओके, प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट, सो वी कैन यूज L0. So L0 always point to first element. So if suppose somebody asks to print the last element, so we can print by using -1, because we know the negative index start from the end and it will start by -1, -1, -2, -3, -4 and then continue, okay, towards the starting. So print L square brackets -1, print the last element. Okay, तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन लिस्ट. So if you want to print first element, then directly we can use L0, or suppose you want to print the last element, we can directly print L-1. Okay, no need to count the number of elements कितने हैं, और आपको suppose पता है कि कितना है, then we can use a positive index also. Okay, positive index भी आप use कर सकते हैं. ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. Okay, so next thing, इसका टाइप प्रिंट करना है तो वी कैन यूज टाइप फंक्शन, टाइप L,
type L, print the list. Okay, now creating a list. So how we can create a list? A list can be created by, there are two methods. So create an empty list. Empty list, it means a list without elements, without any elements. So we can create by method 1, that is L, and we put the square brackets, empty square brackets. If we print this, then it will print like this. Okay, so ये आपका empty list हुआ जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. Method 2, L equal to list, print L. Okay, so print L, it will print empty list. So there are two methods. Either we can use the square brackets empty, or we can use list method. ठीक है, सो ये दोनों ही क्या करेंगे, एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे. इससे भी आपको क्या बनेगा, एम्प्टी लिस्ट बनेगा, और इससे भी आपका एम्प्टी लिस्ट बनेगा. सो वी कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड्स. आइदर आपको ये यूज करना है तो ये यूज करें, या फिर ये यूज कर सकते, डिपेंड्स. ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, add element into the list. Suppose we have one empty list. Now we want to add element into the list. So there is a one method that is called append. So L dot append and the value. If you use this method, it will add element into the list from the end. Okay, end से start करेंगे. So L dot append 23 इसके अंदर add हो गया. Now L dot append again हमने किया 230. So now 23 and 230. If you run this program, then it will print 23 to 30 inside a list. Okay, so append it means जोड़ना. Okay, और ये कहाँ पर जोड़ेगी, लास्ट में. पहले एम्प्टी था, 23 ऐड किया, फिर उसके बाद 2230 ऐड किया. ओके, सो देयर आर टू एलिमेंट्स. और भी सपोज हम ऐड करना है, देन कंटिन्यूसली वी कैन ऐड. जैसे यहाँ पर नीचे एक प्रोग्राम देके रखा हुआ है कि सपोज हमें क्या करना है, 5 वैल्यूज इनपुट करना है फ्रॉम द यूजर एंड उसकी लिस्ट बनानी है. सो प्रोग्राम टू मेक ए लिस्ट ऑफ द 5 वैल्यूज इनपुट बाय यूजर. प्रोग्राम टू मेक ए लिस्ट ऑफ 5 वैल्यूज इनपुट बाय यूजर. ओके, सो यूजर क्या करेगा, 5 वैल्यूज इनपुट करेगा और उसके हमें क्या बनानी है, लिस्ट बनानी. सो हाउ वी कैन मेक ए लिस्ट. सो लिस्ट कैन बी मेक लाइक दिस. सो फर्स्ट इनिशियली हमने क्या किया, वी क्रिएट वन एम्प्टी लिस्ट. ओके, यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बन गया, मतलब अभी हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं. देन वी पुट वन लूप. ओके, लूप फॉर आई इन रेंज 5. अब ये क्या होगा, लूप 5 टाइम रन होगा. ओके, सो टेक द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड इट विल ऐड इनटू द लिस्ट. ये कितने टाइम चलेगा, अप टू 5 टाइम्स. ओके, और लास्ट में हमारे पास क्या होगी, लिस्ट होगी. तो सपोज हमने एंटर किया 20, 25, 46, 99, 89, okay, 59. So all values are inside a list. Okay, ये सारी वैल्यू क्या हो गया, ग्रुपिंग हो गया इसमें, लिस्ट में. ठीक है, एक और मेथड है, दैट इज द इंसर्ट मेथड. सो इंसर्ट मेथड कैसे काम करता है, दैट हम उसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज अ पर्टिकुलर इंडेक्स कि मुझे कहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी. अपेंड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड करता है. सपोज मुझे इन बिटवीन टू वैल्यूज के बीच में ऐड करनी है कोई वैल्यू. सो हाउ वी कैन ऐड, सो वी कैन यूज द इंसर्ट फंक्शन. सो इंसर्ट फंक्शन कहीं भी, मे बी स्टार्टिंग में, मे बी एंड में, मे बी इन बिटवीन कोई वैल्यूज ऐड करनी है तो हम लोग यूज कर सकते हैं. बट अपेंड कैन बी यूज टू ऐड द वैल्यूज इन द लास्ट ओनली. ठीक है, अपेंड लास्ट में ऐड करता है. इंसर्ट के थ्रू हम लोग कहीं भी ऐड कर सकते हैं. Okay, so insert we can use like this. So first is the index value, second one is the value. So suppose if index is not available, suppose आपने दे दिया कि आपके पास empty list है और आपने बोला कि भाई मुझे सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू इंसर्ट करना है, बट सेकंड इंडेक्स तो अवेलेबल है ही नहीं क्योंकि यहाँ तो लिस्ट empty है. So ये कहाँ पर ऐड करेगा, सिंपली इट विल ऐड इट एट द एंड, लास्ट में ऐड कर देगा. सो इसका लास्ट क्या है, कुछ भी नहीं. So simply it will add 20. फिर L insert 15. Okay, 48. ये ऐड करने के बाद में सपोज हमने क्या किया, इसको कमेंट किया. Now we run this program. Okay. So आपके पास क्या आ गया, 20, 15, 48. Okay.
अब मुझे क्या करना है, सपोज ये इसका इंडेक्स है 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। ओके, ये क्या इंडेक्स है इसका, 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स। सो अब मुझे क्या करना है कि भाई इस इंडेक्स पर, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर मुझे कोई और वैल्यू इंसर्ट करनी है। सपोज आई वांट टू इंसर्ट ए न्यू वैल्यू एट इंडेक्स 1। ओके, सो क्या होगा, ये 15 वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर एक न्यू वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, सपोज वी ऐड लाइक दिस। सो क्या हुआ, 100 यहाँ पर ऐड हो गया, 15 शिफ्ट हो गया 48। सो 100 कहाँ पर इंसर्ट हुआ, एट इंडेक्स 1। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि सपोज इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। अब स्टार्टिंग में हमारे पास 2 इंडेक्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज लिस्ट क्या एम्प्टी है। सो इट सिंपली ऐड द लिमिट 20, 15 अगेन इसने ऐड कर दिया। ओके, सो नॉर्मली अभी देखो 20 कहाँ पर है, लास्ट स्टार्टिंग में। अब सपोज यदि मैं इसको इंडेक्सिंग दे दूं यहाँ पर 0। ओके, सो 15 कहाँ पर चला जाएगा, पहले चला जाएगा। सो लाइक दिस, 15 यहाँ पर आ गया, 20 यहाँ पर आ गया। क्यों, बिकॉज अब जो वैल्यू इंसर्ट हुआ वो कहाँ पर हुआ, 0 इंडेक्स पर हुआ। ओके, सेकेंड इंडेक्स पर 48, 1 पर हमने 100 कर दिया। अब सपोज इंडेक्स 50 पर मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। इंडेक्स 50 कहाँ पर है, 50 है क्या, इंडेक्स 50 है क्या, नो। सो 1 2 3 4, 1 2 3 ही इंडेक्स है हमारे पास, 50 इंडेक्स नहीं है। 50 इंडेक्स कहाँ पर होगा, लास्ट में होगा, लेकिन अवेलेबल नहीं है। सो सिंपली इट विल ऐड, कहाँ पर ऐड कर देगा, यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देगा। सो ये इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, 50 इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। So if index is not available, then it will put the values at the last. Simple. Okay. So you can run this. So 100 आपका कहाँ पर आ गया, लास्ट में आ गया। ओके, क्लियर है। श्यामा, sir. श्यामा, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. ओके, नाउ सो इंसर्शन हो गया। नाउ डिलीट ए वैल्यू। So to delete a value, we can use the pop method. So pop method deletes the value. So there are two versions of the pop. Pop can be used with index and pop can be used without index. Okay, so there are two versions. So pop, if we use without index, so it will delete the value from the end. मतलब जो लास्ट में वैल्यू होगी उसको डिलीट कर देगा, सिंपल सी बात। If you use the pop index, so it will delete the specific value from that index. Okay, delete from the index given. जो भी इंडेक्स आप देंगे, सपोज मुझे 0 इंडेक्स का वैल्यू डिलीट करना है, so it will delete the value from the 0 index. Okay, but it generate error if index is not available. इंसर्ट में ऐसा नहीं था। इंसर्ट में क्या हो रहा था कि सपोज इंडेक्स अवेलेबल नहीं, then it will put the values in the last. But in case of delete, if the index is not available, then it generate error. Okay, now suppose we have list. What we have? We have list 23, 45, 67, 89, 12. Suppose we have a list. So print the list before pop. Now we use pop, l.pop. Okay. So what it will do? It will delete the last element because हमने कौन सा method use किया है, second वाला. Delete the value from the end without index. So it will delete 20. Okay. देखो यहाँ पर 20 था, यहाँ पर remove हो गया. Okay. So the second, suppose you want to delete a value from the specific index. Okay, suppose हमने किया कि मुझे suppose index 2 delete करना है. Now what is index 2? What is the value at index 2? Prajakta, Prajakta, Yes, sir. what the value at index 2?
सेकेंड इंडेक्स पर क्या वैल्यू है? सर 67। 67, करेक्ट। सो इंडेक्स 0, ये आपका 1 और ये इंडेक्स 2। ओके, ये 3, ये 4। प्राजक्ता क्या प्रॉब्लम है? प्राजक्ता Yes, sir. इश्यू है कुछ? इंडेक्सिंग समझ में नहीं आई? No, sir. हाँ, देखो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती है ना, सिस्टम क्या करता है, उसकी इंडेक्सिंग करता है। जैसे सपोज आपने ट्रेन के कोच देखे होंगे, है ना, जस्ट लाइक अ ट्रेन। सो ये ट्रेन है और ये सारे कोचेस हैं। सो ट्रेन की कोचिंग कैसे होती है? S1, S2, S3, S4, S5, S6, लाइक दिस। ओके, A1, A2, A3, B1, B2, B3। ओके, इसी टाइप से होती है ना Yes. प्राजक्ता? Yes, sir. ठीक है। सो सिस्टम भी क्या करता है, इसकी नंबरिंग, जितने भी आपके पास लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को सिस्टम क्या करता है, सीरियल नंबर अलॉट करता है। मतलब एक लोकेशन होती है, लेकिन लोकेशन का कौन सा नंबर किस पर्टिकुलर पोजीशन पर है, वो पोजीशन अलॉट करता है। बट सिस्टम स्टार्टिंग द पोजीशन फ्रॉम 0, नॉट 1। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं। Suppose we make one list, empty list. Okay, so यहाँ पर देखो one empty list, 0 empty list. Okay, so if you make so suppose if we add element into the list, suppose we add dot append. Okay, append हमने क्या किया? 20. Now you will see 20 element add हो गया। कहाँ पर हुआ? 0 पर। Okay, now we add one more element. 30 कहाँ पर हुआ? 1 पर। ओके, स्टार्टिंग फर्स्ट वैल्यू कहाँ पर है? 0 पर। सेकेंड वैल्यू 1 पर। ओके, अगेन सपोज इफ यू अपेंड नेक्स्ट वैल्यू 42 पर। ओके, इसका मतलब है कि ये वैल्यू कहाँ पर ऐड कर रहे हैं? लास्ट में 50। इंडेक्सिंग कैसे है? 0, 1, 2, 3। प्राजक्ता Yes, sir. क्लियर है? सपोज वी क्रिएट वन Yes. L1 इक्वल टू 20, 30, 50, 40, 80, 90. Okay, now you see इसको हम लोग 200 कर दें, 200, 500. Okay, now you see we have another list क्या है? L1. Okay, so L1 the 0 value is 200, 1 300, 2 पर क्या है? 500. Okay, दिख रहा है? 3 पर क्या है? 400, 4 पर क्या है? 80, 5 पर क्या है? 90. ये क्लियर है? So the Yes. indexing start with 0. So system पॉजिटिव इंडेक्स भी रखता है और नेगेटिव भी रखता है। सो नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट होगी? -1, -2। यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग शो नहीं हो रही है, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5, ओके, यहाँ पर 6। सो सपोज यदि आपको फाइंड आउट करना है कि सेकंड इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, सो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 0, ये 1 और ये 2। ठीक है,
सो सेकेंड इंडेक्स पर कौन सा वैल्यू एलिमेंट है 500, यहाँ पर देखो ये 500 है, सेकेंड इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है 500। ओके प्राजक्ता, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. सो जीरो, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सीरियल नंबर स्टार्ट करना है, अलॉटिंग करना है, सीरियल नंबर अलॉट करना है, बट वी स्टार्ट फ्रॉम दी जीरो, 0 1 2 3 4 लाइक दिस। सपोज हमारे पास ये लिस्ट है, सो इसके सीरियल नंबर्स हम लोग अलॉट करेंगे कहाँ से, जीरो से, 0 1 2 3 4 लाइक दिस, कंटिन्यू। ओके, सो सेकेंड इंडेक्स पर कौन सा वैल्यू है 67, कौन सा वैल्यू है 67। सो पॉप क्या करेगा, इस 67 को डिलीट कर देगा, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या दिया है, इंडेक्स दिया है। यहाँ पर इंडेक्स नहीं था तो ये कौन सा एलिमेंट डिलीट कर रहा था, लास्ट एलिमेंट डिलीट कर रहा था। जब इंडेक्स अवेलेबल नहीं होगा तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, लास्ट एलिमेंट। और ऐसे चुप नहीं रहना है, जो क्लियर नहीं होता है वो उसी टाइम पूछा करो, क्लियर किया करो, ठीक है? ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। 23 45 67, ठीक है, सेकंड एलिमेंट पर कौन सा है आपका 67। सो द पॉप विल डिलीट 67। सो इफ यू रन दिस प्रोग्राम 23 45, ये क्या है, बिफोर पॉप, हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट बिफोर पॉप, सो इट विल प्रिंट लाइक दिस। आप फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इसने क्या किया, सेकंड वाला इंडेक्स इस वैल्यू को डिलीट कर दिया। सो यहाँ पर देखो 67 अवेलेबल नहीं है, क्या चला गया, 67 डिलीट हो गया, ठीक है? ये क्लियर है श्यामा? Yes. श्यामा, यस नेक्स्ट। सर क्लियर है। नाउ सेकंड मेथड क्या है डिलीट करने का, ओके? सो पॉप जनरेट एरर इफ द इंडेक्स इज नॉट अवेलेबल, ठीक है? पॉप में सपोज हमने यहाँ पर क्या इंडेक्स लिख दिया, 20 लिख दिया, 20 इंडेक्स अवेलेबल है क्या प्राजक्ता, इंडेक्स 20 अवेलेबल? Sir. इंडेक्स 20 अवेलेबल है? Sir, sixth number. हाँ, इंडेक्स 20 अवेलेबल और नॉट? No, sir. हाँ Sir, हाँ, इंडेक्स 20 इज अवेलेबल और नॉट? प्राजक्ता, प्राजक्ता, sir seventh number पे है ना? देखो ये जो है ये क्या है, इंडेक्स है, ठीक है? वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो वैल्यू इज अ डिफरेंट थिंग, इंडेक्सिंग इज डिफरेंट थिंग। सो भी जैसे हमने यहाँ पर देखा, इंडेक्स आपके जो भी हैं वो सब कहाँ पर ये हैं, दीज आर द इंडेक्सेस, नॉट द वैल्यू। वैल्यू कहाँ पर है, बाहर है, वैल्यू कहाँ पर है, आउटसाइड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स नॉट द वैल्यू। सो दोनों ही अलग अलग चीजें, इंडेक्स अलग है, वैल्यू अलग है, ओके? सो ये आपके इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5। सो इफ वी असाइन इंडेक्स 20, लेकिन हमारे पास इंडेक्स कितना है, 7 है, ओके? जैसे तुमने बोला 0 1 2 3 4 5 6 and 7. So index 7 is available. The value of index 7 is 20, but index 20 is not available. दोनों अलग अलग चीजें हैं, इंडेक्स अलग है और उस इंडेक्स की वैल्यू अलग है, ओके? सो इंडेक्स इज डिफरेंट थिंग, वैल्यू इज डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। इंडेक्सिंग मतलब उसकी पोजीशन, ओके? उस पोजीशन पर क्या वैल्यू है, ओके? सो इंडेक्स 7, ओनली इंडेक्स 7 अवेलेबल, इंडेक्स 20 अवेलेबल नहीं है। सो क्या करेगा ये, जनरेट एरर। देखो क्या आया, इंडेक्स एरर जनरेट है, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब 20 है ही नहीं, कहाँ से, 0 से लेके 7 तक है,
So we can delete element up to 0 to 7, but we cannot delete the element at index 0 because index 20 is not available. ठीक है? So if the index is not available, it generate error. ध्यान रखना है. Index 2 we can delete. Okay? प्राजक्ता, अभी भी डाउट है? So there is a website pythontutor.com. pythontutor.com. ठीक है? यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? अपने कोड को विजुअलाइज कर सकते हैं. pythontutor.com. ओके, यू कैन विजुअलाइज योर कोड. आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो. ओके, से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की पर्टिकुलर मेमोरी कैसे क्या क्या पर्टिकुलर अलॉट हो रही है. ठीक है, तो ये फोन में ओपन हो जाएगा? हाँ हो जाएगा. pythontutor.com. बट बेटर है कि यू विजुअलाइज दिस. ठीक है, आप जब तक उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा. आप जस्ट उसको सोचो कि वो कैसे मेमोरी में रख रहा है उसको, सीरियल नंबर क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, वैल्यू क्या है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं, डिलीट. ओके, सो देयर आर सेकंड मेथड. वन इज द मेथड पॉप, सेकंड मेथड इज del. So del delete the element with indexing only. It cannot delete the value without index, just like pop. So del L0 मतलब कौन सा डिलीट होगा? 23 डिलीट होगा. ओके, सो इसने 23 यहाँ पर डिलीट कर दिया. ओके, 23 क्या कर दिया? डिलीट कर दिया. नाउ del कैन आल्सो बी यूज टू डिलीट द लिस्ट. टू डिलीट द लिस्ट. सो यहाँ पर लिस्ट डिलीट नहीं कर सकता पॉप, बट del क्या कर सकता है? इट कैन डिलीट द L आल्सो. ठीक है, सो जैसे सपोज हम लोग यहाँ पर देखें, सो इफ यू यूज del L1, अब क्या हुआ? डिलीट हो गई. उसने लिस्ट का स्ट्रक्चर ही डिलीट कर दिया. समझ में आ रहा है? सो del कैन बी यूज टू डिलीट द होल स्ट्रक्चर. सपोज हमने किया L0, del L0. ओके, सो क्या किया उसने? L0 को डिलीट कर दिया. मतलब यहाँ पर 200 था, 200 को डिलीट कर दिया. ओके, अब क्या किया? 300 आ गया. ओके, सो del can be used to delete the list, the whole structure also, but pop cannot delete the whole structure. It can delete only the value from the specific index only. ठीक है, ठीक है, it's okay. It's okay. Yes, sir. ठीक है, बाकी कल देखते हैं. ओके, ओके सर. ओके, बाय.